Hello and welcome. Welcome to the next video of periodic classification of elements. In the last learning session, the last line which I had given in the presentation was that the relation between atomic number and electronic configuration can be clearly seen in the modern periodic table, right? We had begun modern periodic table and this is the last line we ended with. And I had said at the end that we are going to look at electronic configuration in much more detail in the next learning session. So today we are only going to learn electronic configuration, then we will see what is valency once we look at electronic configuration. Okay, so before we actually start looking at electronic configuration or even start discussing this table, you can ignore this table for now. What I first want to talk about is how does an atom look like, because you'll need to know how an atom looks like, only then we will be able to discuss about electronic configuration. Okay, so how does an atom look like? Atom has a center which has protons and neutrons, right? So let me draw that. It will have a center which will have protons are positively charged, right? So it will have some protons and it will have some neutrons have no charge. Okay, neutrons will have no charge or zero charge, neither positive nor neither negative. So these are the protons and there will be some electrons around, right? So electron 1, electron 2, 3, 4, so on and so forth. And electrons will be negatively charged. Electrons are negatively charged, protons are positively charged, so on and so forth. Okay. Now, how many electrons or how many protons does an atom have? That will be decided by the atomic number. Okay. So before going to that, let me imagine carbon. Okay. So we know coal is made up of carbon. Coal is what? Koila, right? So if I have a piece of coal in my hand, it means I have a piece of carbon in my hand because coal is made up of carbon. Now if I keep cutting this piece of coal into smaller and smaller pieces, the smallest piece which I will get, which cannot be further divided, is an atom of that element, which is carbon atom. Okay, so now I want to draw a carbon atom. Okay, how will I draw a carbon atom? I need to first know number of protons and number of number of electrons. Okay, and that how will I know? By knowing its atomic number. So we have already by hearted the atomic numbers of the first 20 elements, right? How have we by hearted? We have by hearted using that long sentence, right? So first was hi, next is hello, next is listen, then B, C. Okay, so hi for hydrogen, hello for helium, listen for lithium, next is beryllium, Be, next is boron, next is carbon. And what are the atomic numbers? Line se 1 2 3 4 लिखना है. Okay, so hydrogen's atomic number is 1, helium का is 2, lithium 3, beryllium 4, boron 5, carbon 6. यहाँ पे मैंने 6 क्यों लिखा? Carbon. Okay, C for carbon. Okay, so I want to draw the atom of a carbon and I know atomic number of carbon is 6. So it means two things. Number of protons will be 6. Okay. Number of protons will be 6 and proton has positive charge. Okay. Give me a minute. Okay. So plus 6. So this atom overall right now has plus 6 charge. Okay. Why? Because protons are positively charged. But the atom by itself has no charge. It is neutral. So प्लस 6 को कैंसिल करने के लिए आई विल नीड -6. सो -6 कहां से आने वाला है? फ्रॉम द 6 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड इट. ओके, सो आई हैव ड्रॉन 4 ऑलरेडी. सो लेट मी ड्रॉ अनदर 2. सो अभी 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. 1 2 3 4 5 6, राइट? सो बिकॉज ऑफ दीज 6 इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड. तो +6 -6 ओवरऑल इट इज गोइंग टू गिव मी 0. +6 -6 इज 0. और पूरा का पूरा एटम इज न्यूट्रल, राइट? वो ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव. एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन पर्टिकुलर ऑर्बिट्स. ओके, सो द फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी रिवॉल्विंग इन द फर्स्ट ऑर्बिट, द नेक्स्ट 4 मस्ट बी रिवॉल्विंग इन द सेकेंड ऑर्बिट, सो ऑन एंड सो फोर्थ. देयर विल बी सो मेनी ऑर्बिट्स. ओके, और यहाँ पे सेंटर में जो है देयर इज न्यूक्लियस. ओके, न्यूक्लियस विच हैज protons and neutrons. How many neutrons? Carbon has 6 neutrons. Okay, but it is not compulsory कि number of protons and number of neutrons equal होना चाहिए. Okay, keep that in mind. Number of protons and number of neutrons need not be equal. They can be unequal. Why do you need neutrons?
तुम लोग को एक प्रोटॉन मिल गया, इलेक्ट्रॉन मिल गया, न्यूट्रॉन की क्या जरूरत है, न्यूट्रॉन का कुछ चार्ज भी नहीं है. सो व्हाट इज न्यूट्रॉन्स डूइंग दैट इन द न्यूक्लियस? द आंसर इज यू ऑल नो दैट ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, राइट. यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. सो अगर यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, दे आर गोइंग टू पुश ईच अदर अवे, राइट. सो दिस 6 प्रोटॉन्स ऑल हैव द सेम चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और वो लोग बहुत ही कम स्पेस में दे आर लिविंग, राइट. They are living in very small space and all of them have the same charge, so they are going to push each other. So to create buffer between them you have neutrons. Neutrons का कोई चार्ज नहीं, वो बीच में जाके सारे प्रोटॉन्स को साथ में चिपकाए हुए रखेंगे. Okay, that's the work neutron is doing here. Okay, and neutrons का जो नंबर है that need not be equal to proton number. ऐसा भी हो सकता है कि बीच में say for example there are 100 protons but there are 150 neutrons. That can also happen. Okay, so if you have understood this, next क्वेश्चन इज फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ओके, व्हाई कांट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स गो इन द फर्स्ट ऑर्बिट? अब यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स को मैंने फर्स्ट ऑर्बिट में क्यों नहीं लिखा? दैट्स द क्वेश्चन. सो लेट अस अंडरस्टैंड बाय एन एनालॉजी. एनालॉजी इज इमेजिन अ रूम. ओके, हर एक रूम का एक कैपेसिटी होता है, राइट. सो इफ यू आर लिविंग इन अमेरिका और यूरोप, यू विल से वन रूम हैज कैपेसिटी ऑफ 2 पीपल. एक रूम में सिर्फ 2 लोग रह सकते हैं. इफ यू लिविंग इन मुंबई, यू विल से एक रूम में कम से कम 12 लोग रह सकते हैं. ओके, आई हैव सीन दैट. सो बट वट एवर द केस इज, एक रूम का कैपेसिटी होता है, राइट. एक रूम के अंदर 100 लोग तो नहीं रह पाएंगे. एवरी रूम हैज इट्स ओन कैपेसिटी. सिमिलरली एवरी ऑर्बिट हैज इट्स ओन कैपेसिटी. ओके, सो फर्स्ट ऑर्बिट का कुछ कैपेसिटी होगा, सेकेंड का कुछ कैपेसिटी, देन यू विल हैव द थर्ड वन, फोर्थ वन, so on and so forth. Okay, तो इन ऑर्बिट्स के नाम है. So ऑर्बिट्स को शेल्स भी बोलते हैं. So they have written shells over here instead of orbits. और ऑर्बिट्स के नाम होते हैं. So the first orbit is K orbit or K shell. Next is L orbit or L shell. Then is M. Third is M shell or M orbit and N orbit or N shell. तो सारे ऑर्बिट्स के नाम है. सिर्फ 4 ऑर्बिट्स नहीं होते, आगे भी हो सकते, उनके भी नाम है. ओके, बट यू ऑल नीड नॉट गो सो मच इन डिटेल. ओके, सो दीज आर द वेरियस नेम्स ऑफ ऑर्बिट्स एंड सबके अपने अपने कैपेसिटी होंगे. एंड इट इज वेरी इजी टू सी दैट, राइट. फर्स्ट ऑर्बिट है, उसका सर्कमफरेंस बहुत ज्यादा कम है. सो लेस सर्कमफरेंस, इट मीन्स इट विल हैव लो कैपेसिटी. वहां पे 100 इलेक्ट्रॉन्स नहीं डाल पाओगे. सिमिलरली लास्ट ऑर्बिट देखो, लास्ट शेल देखो, इट हैज अ ह्यूज सर्कमफरेंस. बिकॉज इट हैज अ ह्यूज सर्कमफरेंस, उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रह पाएंगे, इसलिए उसका कैपेसिटी ज्यादा होगा. ओके, सो फॉर नाउ व्हाट वी नीड टू नो इज एवरी इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट हैज डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटीज. अगर बीच में होगा, पहला होगा तो बहुत छोटा होगा, कम कैपेसिटी, दूर होगा तो ज्यादा कैपेसिटी. अभी कितना कम कितना ज्यादा, हाउ विल यू नो दैट? फॉर दैट यू हैव अ फॉर्मूला. ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला? 2n square. This is the formula. Okay, so now just put these values. So k is your first term. n क्या है? कौन सा ऑर्बिट है? अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो n will be 1. सेकेंड ऑर्बिट है n will be 2. फोर्थ ऑर्बिट है n will be 4. Okay, so k is 1, l is 2, m is third orbit, n is fourth orbit. So just put the values in the formula. So 2 into 1 square is 2, 2 into 2 square is 8, 2 into 4 square is 32, so on and so forth. So तुम लोग को इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी मिल जाएगा यूजिंग दिस फॉर्मूला 2n स्क्वायर. ओके, दैट्स द फॉर्मूला. अगर तुम लोग भूल भी गए कि थर्ड ऑर्बिट का क्या कैपेसिटी है, थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिट हो सकते हैं, जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला 2n स्क्वायर. थर्ड है यानी 2 into 3 square. 3 square is 3 3s are 9 and 9 2s is 18. Okay, so third orbit में 18 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं. Okay, so now that, so this is called as electronic configuration. What is electronic configuration? कौन से ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है उस एटम के, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ओके, आई रिपीट, कौन से ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है ऑफ वन पर्टिकुलर एटम इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम. सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कार्बन है, राइट. सो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? कार्बन में फर्स्ट ऑर्बिट में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स. सेकेंड ऑर्बिट में कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स. सो दिस इज electronic configuration of carbon. That is what we mean by electronic configuration. Okay, so now what we're going to do is we're going to write electronic configurations for the first 20 elements.
Okay, so we have by-hearted the atomic numbers and the symbols of the first 20 elements, right? Now we are going to write the electronic configuration for all the 20 elements. Okay, so first is hydrogen. Okay, so ये मैंने लाइन में लिख दिया. Okay, so remaining are okay. So I've written all the 20 elements over here. What will be its atomic numbers? बस line में 1 2 3 4 लिखते जाना है. So hydrogen will be 1, helium 2, lithium 3, so on and so forth. Kindly start copying this in your notebook while I'm doing it on the board. Okay. Okay, so what all have I written? I have written the name of the first 20 elements और उनके atomic number लिखे हैं. सबका हम लोग electronic configuration find out करने वाले हैं. Okay, so the first one we have hydrogen. So hydrogen में एक ही इलेक्ट्रॉन है, राइट? सो एक इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली फर्स्ट ऑर्बिट में चला जाएगा, फिर फर्स्ट शेल में चला जाएगा. सो दैट इज वन. नेक्स्ट हीलियम हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स. both the electrons will go in the first orbit, right? Why? Because the first orbit का capacity क्या है? 2 electrons. So both the electrons will go in the first orbit or K shell. Okay, next lithium. So lithium में there are 3 electrons, right? So 3 electrons है, तो पहले 2 electrons will go in the first orbit, but अभी first orbit का capacity full हो गया है. Okay, first orbit can only have 2 electrons. बट लिथियम के पास है 3 इलेक्ट्रॉन, तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है दैट विल गो इन द नेक्स्ट ऑर्बिट. सो आई विल राइट 2 कॉमा, गिव मी अ मिनट. सो आई विल राइट 2 कॉमा 1. ओके, सो 2 कॉमा 1. नेक्स्ट बेरिलियम, अगेन 4 इलेक्ट्रॉन्स यानी फर्स्ट 2 एलिमेंट्स विल गो इन द first 2 electrons will go in the first orbit and the remaining 2 electrons will go in the next orbit. So 2 comma 2. Now you can see the pattern, right? तो ऐसा चलते रहेगा. First 2 electrons, the first orbit, next 2 electrons in the second orbit. So here I will get 3 for boron. Next, start doing this while I'm doing it on the board. Okay, don't wait for me to complete and then copy. Start doing it while I'm doing it on the board in your notebooks. Okay, and keep checking your answers. Next 2 comma 4, पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट ऑर्बिट में, नेक्स्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स सेकेंड ऑर्बिट में. ये कब तक चलते रहेगा? जब तक आई रीच 8. ओके, क्योंकि सेकेंड ऑर्बिट का कैपेसिटी है 8 इलेक्ट्रॉन्स. सो दिस विल कीप कंटिन्यूइंग टिल आई गेट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेकेंड ऑर्बिट. सो टिल नियॉन दिस विल गो ऑन. ओके, नियॉन तक ऐसे ही चलने वाला है. क्या चलने वाला है? ऐसे ही कि पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट ऑर्बिट में चले जाएंगे एंड रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स विल गो इन द सेकेंड ऑर्बिट. तो नियॉन के बाद सोडियम से थर्ड ऑर्बिट में जाना शुरू हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स. ओके, सो फ्रॉम सोडियम ऑनवर्ड्स दे विल स्टार्ट गोइंग ऑन इन द थर्ड ऑर्बिट. सो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट ऑर्बिट, देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेकेंड ऑर्बिट, क्योंकि सेकेंड ऑर्बिट का भी कैपेसिटी फुल हो गया, उसमें सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं. ओके, सो 8 हो गए. अब 2 + 8 10 हो गया. एक और इलेक्ट्रॉन बचा है सोडियम का पुट करने के लिए. सो दैट विल गो इन द थर्ड ऑर्बिट.
Okay, so 1 electron in the third orbit. Again this is going to continue, will keep continuing. 2, 8, and then next 2 electrons. Again quickly complete this while I'm doing this on the board. 2, 8, and 3, 2, 8, and 4, 2, 8, and 5, 2, 8, and then 6. Okay, so the last 4 I'm going to take it on the right hand side. Okay, so last 4 of them I'm taking it on the right hand side. So SIPS, next is CL, ARK. Okay, so this is 17, 18, 19, and 20. And let me erase this. Now something interesting is going to happen. Okay, pay attention over here now. I hope you all have done this and you all have understood this. जब भी अभी for example aluminium has 13 electrons, so the first 2 electrons will go in the first orbit क्योंकि first orbit का capacity है 2. The next 8 electrons will go in the second orbit. Second orbit का capacity है 8. 2 plus 8 10 हो गए और कितने बाकी है 13 है, तो 13 minus 10 3 और electrons बाकी है. The remaining 3 electrons will go in the third orbit and third orbit का capacity कितना है 18 electrons रह सकते हैं third orbit में. Okay, so now chlorine. So chlorine's first orbit will have 2, next orbit will have 8, 10 हो गए, and then the last will have, give me a minute, yes, last will have 7. Okay, let me write that 8 properly. Okay, next argon. Argon again, first 2 elements for the first 2 orbits will remain same, right? First 2 shells will have 2 electrons and 8 electrons, and the last will have 8 electrons. Now potassium is something different. Okay, now you all need to pay attention on the board. If you are doing this still on your notebook, I hope you have already, I know many of the students will have already written this. यहाँ पे बहुत लोगों ने 9 और 10 लिख दिया होगा third orbit में, but that's not right and we'll see why. Okay, so again first is fairly simple. First orbit में there will be 2, next orbit में there will be 8. Okay, and next orbit should have how many? 9. How many of you all have written 9 over here? Just check in your notebooks. How many of you all have written 9 over here? And similarly for the next one also you all must have written 2, 8, 10. Right? बहुत लोगों ने ये लिखा होगा. Check this. But that's not how it is going to play and it's not your mistake. ये तुम लोगों ने कोई गलती नहीं की है. It's just that ये दो एग्जाम्पल्स थोड़े अलग है. सो इंस्टेड ऑफ 9 यहाँ पे क्या होने वाला है? इंस्टेड ऑफ 9 इट इज गोइंग टू हैव 8 in the next and 1 in the fourth orbit. Okay, similarly here instead of having 10 electrons it is going to have 8 electrons in the third orbit and 1 electron in the next orbit. Now why is this happening? हम लोग ने क्या देखा था? फॉर्मूला के हिसाब से m ऑर्बिट का थर्ड ऑर्बिट का कैपेसिटी 18 है. भी कैपेसिटी 18 है बट इसमें फिर 9 और 10 क्यों नहीं रह सकता? 18 कैपेसिटी है, राइट? सो 9 एंड 10 शुड बी अलाउड बट दैट इज नॉट अलाउड. इंस्टेड वो सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स रख के एक और जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रह जाता है, यहाँ पे 1 नहीं यहाँ पे 2 आएगा, राइट? प्लस 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स. ये जो एक्स्ट्रा एक और 2 इलेक्ट्रॉन्स रह जाता है उसको आगे वाले ऑर्बिट में डाल देगा. व्हाई इज दिस हैपनिंग? दिस इज हैपनिंग
बिकॉज 8 इज वेरी स्टेबल. ओके, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी स्टेबल, राइट. इसलिए हमेशा फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं. सेकेंड ऑर्बिट के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी स्टेबल. सिमिलरली थर्ड ऑर्बिट के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी स्टेबल. कैपेसिटी 18 है. ओके, रूम के अंदर 18 लोग आराम से रह सकते हैं, बट कंफर्टेबली नहीं रह पाएंगे, स्टेबल नहीं रह पाएंगे. बहुत ज्यादा झगड़ा होगा कि अगर तूने मुझे टच किया, मेरे को धक्का लग गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो बहुत ज्यादा झगड़ा होने वाला है, कंफर्टेबल नहीं होने वाला है. दैट्स व्हाई थर्ड ऑर्बिट में ओनली 8 इलेक्ट्रॉन्स कैन लिव स्टेबली. ओके, आराम से अच्छे से कंफर्टेबली सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं. सो थर्ड ऑर्बिट विल आल्सो हैव 8 electrons and the remaining electrons will be in the next few orbits. So we have studied the orbits of all the first 20 elements. Okay, we have studied the orbits of all the first 20 elements. Now let us talk about valency. Okay, what is valency? Again, you all have learned this in earlier class also. Valency is the capacity of an atom to make bonds with other atoms. Okay, वैलेंस इज द कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू मेक बॉन्ड्स विद अदर एटम्स. ओके, बॉन्ड्स क्यों बनाएंगे कोई एटम? ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो सोडियम के फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, नेक्स्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है. ओके, दिस इज सोडियम. नेक्स्ट लुक एट क्लोरीन ओवर हियर. फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, नेक्स्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स है एंड लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स है. इन दोनों को देखो. ओके, नाउ यू ऑल नो कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स बहुत स्टेबल होते हैं, सेकेंड और थर्ड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स बहुत स्टेबल होते हैं. ओके, और सारे एलिमेंट्स को, सारे एटम्स को स्टेबल बनना है. ओके, दैट्स देयर लाइफ गोल. ओके, ह्यूमंस का लाइफ गोल क्या होता है? जितना पैसे कमाना है उतना पैसे कमाओ. एटम्स का लाइफ गोल होता है जितना ज्यादा स्टेबल हो सकते हो उतना ज्यादा स्टेबल हो जाओ. ओके, सो स्टेबल कैसे होंगे? या तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, या फिर लास्ट और बाकी के जो ऑर्बिट्स में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. उनके ऑर्बिट्स जो लास्ट में है वो फुल होने चाहिए. अगर फुल ऑर्बिट होगा तो वो लोग स्टेबल हो जाएंगे. ओके, सो इसके लास्ट ऑर्बिट में 1 है, इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स आइदर लेना पड़ेगा या फिर 1 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा. सिमिलरली यहाँ पे लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, स्टेबल होने के लिए 8 चाहिए. ओके, या फिर 0 चाहिए लास्ट ऑर्बिट में. सो इसको या तो 7 इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे या फिर 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा. यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन समझो यहां से दे के यहां पे मिल गया तो क्या बन जाएगा? दे विल फॉर्म NaCl, जो तुम लोग का कॉमन सॉल्ट है, जो नमक हम लोग यूज करते हैं, दैट इज सोडियम क्लोराइड NaCl. और वो क्यों बन रहा है मॉलिक्यूल, वो बॉन्ड क्यों बन रहा है? दैट इज बिकॉज सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन ये दे देगा तो बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा. ओके, उसका लास्ट ऑर्बिट जो 8 है वो कंप्लीट हो जाएगा. सिमिलरली इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए लास्ट ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए और स्टेबल होने के लिए, तो सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन ले लो. क्लोरीन भी खुश, सोडियम भी खुश, दोनों का एक बॉन्ड बन जाएगा. और वो बॉन्ड बनने के बाद दे विल बिकम NaCl विच इज योर कॉमन सॉल्ट. ओके, सो सोडियम के लिए क्या इजी है? 1 इलेक्ट्रॉन देना इजी है या 7 इलेक्ट्रॉन्स लेना इजी है? सो सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन देना इजी होगा, राइट? सॉरी, लेना इजी होगा. व्हाई? जस्ट इमेजिन यू आर ड्राइविंग अ कार. ओके, इफ यू आर ड्राइविंग अ कार, गाड़ी में सिर्फ 8 सीट्स है और गाड़ी तभी अच्छी चलती है, स्टेबली चलती है, जब 8 के 8 सीट्स भरे हुए हैं. अगर 8 के 8 सीट्स नहीं भरे हुए तो अच्छे से नहीं चलेगी. ओके, जस्ट अज्यूम दैट. दैट्स नॉट ट्रू बट अज्यूम दैट. सो अगर तुम्हारी गाड़ी में एक ही पैसेंजर है, ओके, सो तुम्हारी गाड़ी कब अच्छी चलेगी? जब पूरा फुल है या फिर कोई भी नहीं है. ओके, सो एक पैसेंजर को निकालना ज्यादा इजी होगा. सो इसका वैलेंसी इज 1. ओके, सिमिलरली क्लोरीन को 7 लोग हैं उसकी गाड़ी में, सो 7 लोग को उतारना इजी होगा या एक जन को और बिठाना इजी होगा, क्योंकि हम लोग को लास्ट में 8 चाहिए, राइट? 8 इज स्टेबल. सो एक जन को ले लेना काफी इजी होगा, तो वैलेंसी इज 1. ओके, सिमिलर यू कैन फाइंड वैलेंसी फॉर द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑल्सो. हाइड्रोजन फॉर एग्जाम्पल, एक ही एलिमेंट है, सॉरी एक ही इलेक्ट्रॉन है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है या तो 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, कुछ भी हो जाए, वैलेंसी इज 1. हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन्स है फर्स्ट ऑर्बिट में और कैपेसिटी कितना है? 2. सो ऑलरेडी फुल है, लास्ट का ऑर्बिट ऑलरेडी फुल है, लास्ट का शेल ऑलरेडी फुल है, ना ही लेना है उसको ना ही देना है उसको. ओके, सो इसका वैलेंसी इज 0. नेक्स्ट लिथियम, 1 इलेक्ट्रॉन है लास्ट ऑर्बिट में. ओके, और
उसका कैपेसिटी कितना है 8, सेकंड ऑर्बिट का कैपेसिटी है 8, सो या तो 7 ले सकते हैं या तो 1 दे सकता है, इजी क्या होगा 1 देना, सो इट्स वैलेंसी इज सो 1 0, इसका वैलेंसी है 1, अगेन हियर 6 इलेक्ट्रॉन्स या तो ले सकते हैं या 2 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स देना इजी होगा, वैलेंसी इज 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स होने कितने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स या फिर 0 इलेक्ट्रॉन्स, 5 ले सकते हैं या 3 दे सकते हैं, व्हाट इज इजियर 3 दे देना, सो वैलेंसी इज 3, 4 कार्बन एटम के बारे में मैंने 9th स्टैंडर्ड में बताया था, राइट, कार्बन एटम इज वेरी स्पेशल, व्हाई, बिकॉज या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है या 4 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, तो कंफ्यूज हो जाता है, तो उसमें बहुत सारे अलग अलग वैरायटी मिलेंगी कार्बन एटम्स में, सो कार्बन एटम्स के ऊपर इवन इन 10th स्टैंडर्ड वी हैव अ कंप्लीटली डिफरेंट चैप्टर, व्हाई, बिकॉज इसका वैलेंसी 4 है, 4 इलेक्ट्रॉन्स ले भी सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स दे भी सकता है, सो देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज इन विच इट कैन मेक बॉन्ड्स, ओके। नेक्स्ट नाइट्रोजन 5 होने कितने चाहिए 8 या 0, सो 5 है, या तो इट कैन टेक 3 और गिव अवे 5, व्हाट इज इजियर taking 3 और giving away 5, taking 3 is easier, so valency is 3, so इसका 2 होगा, इसका 1 होगा, इसका 0 होगा, इसका 1 लिख दिया, 2 3 4 3 2 1 लिख दिया, 0, आर्गोन, अगेन आर्गोन इज वेरी सेटिस्फाइड, लास्ट ऑर्बिट में 8 है, ना ही लेना ना ही देना है, इट इज ऑलरेडी स्टेबल, इसमें 1 एंड इसमें 2, दीज आर द वैलेंसी, सो ग्रीन में सब कुछ जो वैल्यूज लिखे हम लोग ने दोज आर वैलेंसी वैल्यूज, ओके। सो नोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड व्हाई इज नोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट, इससे क्या फर्क पड़ता है, बिकॉज केमिस्ट्री में व्हाट इज इंपॉर्टेंट, केमिकल प्रॉपर्टीज, और केमिकल प्रॉपर्टीज एटम के किससे डिसाइड होते हैं, वैलेंसी से, जो जहां पे भी मैंने ग्रीन में लिखा है, वैलेंसी से उनके केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड होते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल नियॉन का वैलेंसी 0 है, सो 0 तो ऑलरेडी खुश है, ऑलरेडी स्टेबल है, इट विल नेवर मेक एनी बॉन्ड्स विद अदर एटम्स, सो नियॉन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स तुम लोग ने नहीं देखे होंगे, वेयरएज क्लोरीन काफी इजीली मॉलिक्यूल्स बना देगा, राइट, सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज HCl, सो बहुत इजीली मॉलिक्यूल बन जाता है क्योंकि वैलेंसी 1 है, बहुत इजी है बॉन्ड्स बनाना, ओके। सो दैट इज व्हाई लर्निंग ऑल दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट इन केमिस्ट्री, बिकॉज वंस यू नो वैलेंसी देन यू नो एवरीथिंग अबाउट द एटम, ओके, एंड दैट्स व्हाई एटॉमिक नंबर से जब तुम टेबल बनाते हो तब वो ज्यादा सेंस बनता है, व्हाई, बिकॉज एटॉमिक नंबर से ही आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है पता चलते हैं, और आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है उससे केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड होती है, बिकॉज द आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू टेक पार्ट इन केमिकल बॉन्डिंग, आइदर दे विल गिव अवे इलेक्ट्रॉन, टेक इलेक्ट्रॉन, और दे विल शेयर इलेक्ट्रॉन, ओके। So this was about electronic configuration, and all this is going to come out alive in the modern periodic table. Modern periodic table में ये सब काफी अच्छे से तुम लोग को दिखने वाला है कि अच्छा यहाँ पे ये रिलेशन है, वहां पे वो रिलेशन है, which we will go into much detail in the next learning session. Okay, so that's it for this learning session. Again, let me remind what was the last line we read in the last learning session. The relation between atomic number and electronic configuration comes out very well in modern periodic table. So we have फाउंड आउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये ब्लू रेड और ब्लैक में जो कुछ भी लिखा है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके, एंड ग्रीन में जो लिखा है दैट इज वैलेंसी। सो एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो रिलेशन है दैट इज गोइंग टू बी सीन वेरी इजीली इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, हाउ दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट लर्निंग सेशन, ओके। सो दैट्स इट फॉर दिस लर्निंग सेशन, and I hope you'll see me in the next learning session.